Hmm. So this is your paper number 10, CC 10. Okay, immunology. So in immunology, first you have to, and in this paper we will focus on mammalian immunology. Okay, vertebrate immunology, maybe mammalian human immunology. Okay, because invertebrates also shows they have also the defense mechanism against the foreign antigens. They have also, but they have primitive ones. And the humans, mammalian immunology are is the most complex and advanced. Okay, so we will focus on this type of this immunology, which is found in mammals. So what is immune system? Anybody? Have you heard of this term? Immune system. जैसे इम्यून सिस्टम का नाम आता है तो आपके दिमाग में आता होगा डिफेंस सिस्टम. So immune system is defending you from the outside world. That is why you are surviving. Because in the outside environment, there are lots of pathogens. And on daily basis, they are entering your body and your immune system defense mechanism is fighting with it on daily basis. So what is it? The immune system? You can say that immune system is a versatile defense system, and that has evolved to protect animals from invading pathogenic microorganisms. Not only pathogenic microorganisms, as well as cancerous cells, because cancerous cells are your own cell, self cell. So it also protects your body from your own uncontrolled growth showing cells, that is cancerous cells. So you may ask, sir, how they are doing it? So immune system, actually, it generates an enormous variety of cells. There are different cell types that we will come across later in this paper. There are so many types of cells, specialized cells, which are found in blood. They belong to WBC. And they are specialized cells. Not only this, the molecules released by those specialized cells. Okay, the molecules, you might have heard antibodies, interleukins, cytokines, interferon, TNF alpha, IFN gamma. इस तरह से आपने सुना होगा बहुत सारा टर्म मॉलिक्यूल्स का नाम. These molecules are secreted by these specialized cells recruited by immune system. And with the help of these specialized cells and the molecules secreted by them, in the combination of these, the immune system is now capable of. बार बार पूजा कुमारी ये सब पूजा डिस्कनेक्ट हो गई. इसीलिए मैं लॉक कर देता हूँ. मेरा कंटिन्यूटी ब्रेक होता है, फिर मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम है. मैं कहाँ से बीच में से छूटा वो मेरे लिए प्रॉब्लम है. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है. ओके, कहाँ पर थे, क्या बोल रहे थे हम?
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस। ओके, सो कहां पर थे? ओके, so we were discussing about the cells of the immune system and the molecules released by them, how immune system is doing this. So immune system is recruiting the specialized cell, special cells from the blood stream, okay, and the molecules secreted by those special cells, they work it together, and it helps in, they work together, and it does what it does. It recognizes what is pathogen, who are pathogens, means it can recognize self and non-self, because cells are also present in your body. They are your own cells, and if a foreign cell is entering your body, so the immune system is capable of recognizing the origin of the cell, means this cell has come from outside. This cell is not from our body. Okay, so it recognizes, as well as it eliminates, because before elimination, recognition is must. If it doesn't recognize, suppose in sometimes it does mistakes in recognition, then what happens? Life-threatening disease comes into the picture. You might have heard of autoimmune disorders. These are life-threatening diseases. Means your own immune system has turned against your own cells in this type of disease. Autoimmune system, यहाँ पर सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की जो क्षमता है इम्यून सिस्टम की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो आदमी के अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है. सो क्या हो रहा है बॉडी के अंदर? इन हेल्दी पर्सन, इट इज रिकॉग्नाइजिंग and differentiating, okay, and it can distinguish between self and non-self. After that, it is eliminating किसको? foreign cell को. It is eliminating foreign cell, okay, and foreign cells are foreign. फिर प्रॉब्लम सब अंदर बाहर. शशिलता इज वेटिंग. नेक्स्ट क्लास में आएगी टाइम पर, मैं इसको एंटर कर लूंगा. नेहा से डिस्कनेक्ट हो गई, मैं इसको कर रहा हूं. जो टाइम पर नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में टाइम पर आएगा तब एडमिट होगा. सो इट इज किसको एलिमिनेट कर रहा है? A variety of, limitless variety of, infinite variety of foreign invaders. ओके, फॉरेन इन्वेडर्स जो है आपके नाक से, मुंह से, सांस से, स्किन से, म्यूकोसल लाइनिंग से, ये सब रूट ऑफ एंट्री है. ओके, जहां अगर स्किन में कट हो गया तो दैट बिकम्स ए रूट ऑफ एंट्री. पस हो जाता है, घाव बन जाता है. यू माइट हैव सीन दिस इन योर लाइफ. ओके, सो दीज हम लोग इसको आगे देखेंगे. सो लिमिटलेस वेराइटी ऑफ फॉरेन इन्वेडर से यह हमारी रक्षा करता है इम्यून सिस्टम. कैसे? विद द हेल्प ऑफ दीज सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट टुगेदर इन अ डायनेमिक नेटवर्क, whose complexity you might be wondering here. The complexity of these two is rivaling the complexity of nervous system. नर्वस सिस्टम के कॉम्प्लेक्सिटी से ये कम नहीं है इम्यून सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, हु इज मैसेजिंग मी?
ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर है। आई डोंट वांट एनी डिस्टरबेंस। जो नहीं ज्वाइन हो पा रहा है रहने दो, अगले क्लास में ये रिकॉर्डिंग देख लेना। तो मेरे पास टाइम नहीं, फिर मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें भी काफी पढ़ना है आपको। और ये यूनिट ही सबसे बड़ा लेंदी यूनिट है, इसका फर्स्ट यूनिट ही। तो फर्स्ट यूनिट में यही शुरुआत जो अभी कर रहे हैं, ये नहीं समझोगे तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी आप लोग पढ़ भी रहे हो तो एकदम लग रहा होगा कि कुछ एकदम नया बायोलॉजी सर पढ़ा रहे हैं। हेलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम कहाँ पर थे? So these cells and molecules जो रिकॉग्निशन इम्यून सिस्टम रिक्रूट करता है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। अब देखते हैं आगे हम लोग कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटी होती है, कैसे ये काम करता है इम्यून सिस्टम। देन यू कैन फंक्शनली डिवाइड द इम्यून सिस्टम इन two related activities. Here I have mentioned, first one is recognition, the second one is response. पहले वो recognize तो कर लेगा, पहचान तो ले कि इसको मारना है या छोड़ना है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। वो सेल्स पहले पहचानेगा कि मारने के लायक है कि छोड़ने के लायक है। वो देख लेगा कि नहीं ये तो अपना सेल है, इसको क्यों मारेंगे, तो उसको छोड़ देगा। और कोई फॉरेन सेल आएगा तो उसको पहचान लेगा ये बाहर से आया है, डिजीज काउज करेगा कि नहीं करेगा, बट ये बाहर का सेल है, कुछ भी करेगा तो ये गड़बड़ ही करेगा बॉडी के अंदर। इससे पहले कि डिजीज काउज करे हम उसको किल कर देते हैं। वो सब हम लोग देखेंगे कि कैसे वो मारता है, बहुत सारे मैकेनिज्म है किलिंग के। सो दिस इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन पहले। एंड द सेकेंड वन इज रेस्पॉन्स। रिकॉग्निशन करने के बाद अब वो जो एक्शन लेगा that is called as response. इम्यून सिस्टम का जो डिफेंस मैकेनिज्म है that is response. So तो जब रेस्पॉन्स कर रहा है और रिकॉग्नाइज कर रहा है तो आप समझ लो कि यहां पर स्पेसिफिसिटी भी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इज नाउ एबल टू रिकॉग्नाइज subtle chemical differences that distinguish one foreign pathogen from another. थोड़ा सा भी केमिकल डिफरेंस होगा सरफेस मॉलिक्यूल में भी दो पैथोजन के बीच में, तो भी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा कि दिस इज पैथोजन नंबर 1, दिस इज पैथोजन नंबर Y। कहने का मतलब दोनों को सेम पैथोजन कंसीडर नहीं करेगा, सारे पैथोजन को सेम कंसीडर नहीं करता कि ये पैथोजन है, दिस इज वन कैटेगरी। नो, स्पेसिफिकली इट एक्ट्स, नो दिस इज द पैथोजन, बैक्टीरियल पैथोजन, वायरल पैथोजन, फंगल पैथोजन। सो एवरी अलग अलग टाइप के पैथोजन के साथ अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स करता है। तो आप समझ लो कि यहां भी स्पेसिफिसिटी है। जिस भी तरीका से मारना पड़े, वायरस को मारने का अलग तरीका होगा, बैक्टीरिया को मारने के लिए अलग स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। तो अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स ये दिखाता है इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये थोड़ा सा भी केमिकल डिफरेंस होगा, स्ट्रक्चर में चेंज होगा, तो उसको डिफरेंशिएट कर लेता है सरफेस मॉलिक्यूल के। ओके, और हम बता ही चुके हैं, नॉट ओनली दिस immune system is able to discriminate between foreign molecules and bodies of own cells and proteins. अब क्या होता है, जैसे ही एंट्री हुआ किसका, पैथोजन का, वन से फॉरेन पैथोजन और ऑर्गेनिज्म हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, एंटर हुआ, उसका रिकॉग्निशन हो गया। नाउ द इम्यून सिस्टम recruits a variety of cells
and molecules to mount an appropriate response which is called as effector response. रिकॉग्नाइज करने के बाद, रेस्पॉन्स होने के बाद, अंडर रेस्पॉन्स क्या क्या किया इम्यून सिस्टम? इफेक्टर रेस्पॉन्स पहले किया। ये इफेक्टर रिस्पॉन्स क्या है? इफेक्टर रिस्पॉन्स इज द रिक्रूटमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय देम। अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले, रेस्पॉन्स करता है, कैसे रेस्पॉन्स करता है? सेल्स को रिक्रूट करता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स को, and the molecules released by them. So this is effector response to eliminate or neutralize the organism. And the second response is memory response. Suppose the same pathogen enters in your body second time. इसीलिए वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे न्यूली बॉर्न इंडिविजुअल है, नया नया पैदा हुआ, अभी साल भर के अंदर ये वैक्सीन दे दो, 6 महीना के अंदर ये दे दो, 5 साल तक में सब वैक्सीन खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह से उसको वैक्सीनेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम फॉरेन पैथोजन को एनकाउंटर करा दिया गया इन एटेन्यूएटेड फॉर्म, तो इफेक्टर रेस्पॉन्स उसका पहले जनरेट करा दिए वैक्सीनेशन के थ्रू। अब वो सेकेंड टाइम कभी भी लाइफ में एनकाउंटर करेगा उस पैथोजन का, तब उसके अंदर, अब वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसके अंदर मेमोरी रेस्पॉन्स होगा। इससे क्या फायदा होता है? मेमोरी रेस्पॉन्स इज क्विक, तुरंत होता है, और इफेक्टर रेस्पॉन्स आने में कम से कम 5 या 6 दिन लग जाते हैं, विदिन 4 and 5 days। जब आपका पैथोजन एंटर हुआ बॉडी में, उससे 4-5 दिन के अंदर इफेक्टर रेस्पॉन्स आ पाता है, क्योंकि अब स्पेशल सेल्स रिक्रूट होंगे, मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, सबको कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारा सिग्नल ट्रांसडक्शन, सब मैकेनिज्म होते होते तब तक 5-6 दिन के अंदर अगर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर गया, वायरस मल्टीप्लाई कर गया, उसका विंडो टाइम कम है, तो आपके अंदर डिजीज हो जाएगा इन माइल्ड फॉर्म और मॉडरेट फॉर्म। अगर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर गया तो सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज कैन ऑल्सो हैपन। ओके, इस 5-6 दिन के अंदर। उसके बाद इफेक्टर रिस्पॉन्स जब एक्टिव हो जाएगा, तब आपका फुल्ली डिफेंस मैकेनिज्म विल एक्ट अगेंस्ट दैट पैथोजन। तो तब तक हो सकता है 5-6 दिन में लेट भी हो जाए, थोड़ा डिजीज प्रोग्रेस कर जाए, तो थोड़ा बहुत डिजीज हो जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज है उनका वैक्सीनेशन करा दिया जाता है बच्चे में ही, ताकि इफेक्टर रेस्पॉन्स हो जाए। अब मेमोरी डेवलप हो जाता है, प्लाज्मा सेल्स, ये सब आगे हम पढ़ोगे इसी पेपर में। और वो सेल्स जो है लाइफ लॉन्ग बॉडी में रहते हैं। जब भी सेम टाइप ऑफ पैथोजन एनकाउंटर होता है, वो तुरंत एंटीबॉडी सिक्रीट करना शुरू कर देता है। लेकिन फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी सिक्रीट कराने के लिए जो इफेक्टर रेस्पॉन्स होता है, दैट इज 4-5 days लॉन्गर। सो नाउ आई एम कमिंग टू इफेक्टर रेस्पॉन्स। बता दिए आपको। तो इफेक्टर रेस्पॉन्स के द्वारा क्या कर रहा है इम्यून सिस्टम? इट इज कन्वर्टिंग द इनिशियल रिकॉग्निशन इवेंट इनटू ए वेराइटी ऑफ इफेक्टर रेस्पॉन्सेस। बहुत तरह का इफेक्टर रेस्पॉन्स है। कुछ रेस्पॉन्स जो है बाय बर्थ आपके बॉडी में है, दोज आर कॉल्ड एज इनेट कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, and some are acquired or adaptive, you can say. This is accumulated or encountered in the lifetime. So this is not present by birth. So memory response is a type of adaptive response. किसी पैथोजन का मान लिया इफेक्टर रेस्पॉन्स नहीं होगा, तो उसका मेमोरी रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। पहले इफेक्टर रिस्पॉन्स होना जरूरी है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इनेट कंपोनेंट्स क्या क्या है, एडेप्टिव कंपोनेंट्स क्या क्या है। लेकिन पहले मेमोरी रिस्पॉन्स के द्वारा क्या हो रहा था? रैपिड और हाइटेंड इम्यून रिएक्शन हो रहा था।
इफेक्टिव में टाइम लग गया। और इसके द्वारा इट इज सर्विंग टू एलिमिनेट द पैथोजन and prevent the disease in an effective way and quickly. So now coming to next part, cells and molecules. What are those? These cells and molecules only, and the mechanisms, defense mechanisms shown by these cells and molecules. They are protecting the body from the foreign invaders. ये आपको clear है? Okay. And these elements